Ole voin Mars ni somni la pariat kum sang hi somni la paruk ani a voin ni a hei 23 sector a Adm.Comdt pension kal dona chumi thanan voin ni a hei Barakhana siama kini ex serviceman temen som ve a hei kan tel ve don ni a khu ha check khop mai a hun te po kha duangin kan mang thei lo anga ti khal ho om khop mai a maro chu hei khu te palo eng le phiana zia turangai la ti hianin hei tura amun kan thleng tha ke ni hi ex serviceman hi pakua vel kan kal theia hin hun kan man na te karon tilang zelanga kan program te video cover kan tumanga kan tilang zelang hele mat po hei family ho tamle to khop mai he nei thanem khop mai ro sura nó kal thei lo tura khan kan ga ya ma se hei ngai kan lo khop nem phian mai kha welcome ta hei kan piar rai jesio sa po hi lekin ajo ek tik khona mo chunin kal le tura dia hello ma hian hei thutna ram thata melo sim sakani hi hei ex serviceman tamin du sakhap mai ta hian ti hian an thunga hi kan thutna tur lamania do hele ma po hianin ana tilang vele zuinge ani ho po hi hele ma te po hian hei jawan nan pang ho mo hele hian hei turan al siam boka mai cái hei hi chu an ron la chop chuk vek lo wa la lang kim thei don lo wa hei a pui ra tilang zui ne nó từ lòng chân dâm dây lăng như này hết này tour next balance anh xem mỏng một bài hay anh chọn thêm lẹ kia đòn mấy rin này Hello, check. Hello, check. Hello, check. 1, 2, 3. Oh, hey, CSDIC. Hey, tôi nắp bao nhiêu mà tỷ lệ tan đi hay? Udah pilih. Kira dia tuh. Vui vẻ em mình đi hay thì hiền cho nên đây tôi đang xem boka
train thut nan lo ko mu boka ala he kan le zuinga e zurhen lo hong lo dawa ये है सर चना बनाया हुआ है chana tu do khop bai मूंगफली है सर ये बिहार का मूंगफली है good सेब tu don hai kal ro lu tu bani hai नेपाली गोरखा चटनी अच्छा नेपाली गोर्खाली चटनी आती ओभन पे रखन मेरो मेरो नेपाली गोर्खाली चटनी अच्छा वाह ए गौरी गाना hay là pahial samek bo hay là mi chu thim đâu khop mấy à nó sẽ phía thấu tu rang ai à hay là hial jesiu sap lu kan lo chu boka sap hi fel ta mai ni pr ai jesiu ni hay hi ai fel ta mai ni hay là hial em có vấn đề sap te pon lom boka thì hiện hay là mà hiện in Turkey hay hiện是被Barakhana lúc bер chứ बिल्कुल टेंशन फ्री में करते हैं काम thì hiện in đuôi này nữa in đuôi là vin thấy đuôi sao in thấy hal bọc này कोई प्रॉब्लम तो नहीं बिल्कुल टेंशन देते नहीं हम तो दूसरे को करते हैं अपना काम भाई ग्लास और सीधे कर प्रोसील स्टार्ट कर इन ग्लास में जूस आता है छोटे ग्लास में thì hiện in là xem trên đây हेलो thì hiện in anh duy lộc tan thì son thấy túi in từ rồng hal bọc top mày khu vật bọc cầm phu tiêu chưa nuột thì từ rang ai pot mày ăn ngô उसके बदले दूसरा चिकन लेने से आप लोगों को कैसे रहेगा nuột vẫn từ việc từ rang ai tiền vinh chu हेलो komandan narong kale Vindia kat komandan peson kalturi hai Sector Assam Assam mi ania fel khop mai hai ma Đấy sao? नहीं ये Bas ठीक है साहब Kirahian dia ji nupui main saparong kal toa hai
soมันปลุกปลุกหนัวมันติดเข้าไปอ๋ออ๋ออ๋อใช่Ura Sector Commander DG साहब रुकल वैले चाहिए नहीं Respected First Lady, Brigadier Post Industry, Commander Headquarters 23 Sector, Commander Headquarters 23 Sector Assam Rifles, Commandant BK Sakya, Commandant Adam, all ladies, JSU Savan, ESL, and families. जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे होने का बड़े खाने का जो ओकेजन हमने जो ऑर्गेनाइज किया है, हमारे कमांडेंट एडम साहब 1 अप्रैल को 43 इयर्स सर्विस कंप्लीट करके हमारे सेक्टर से विदा होंगे। इसके साथ साथ ही हमारे एसएम साहब भी अगले महीने 30 अप्रैल को अपना सर्विस पूरी करके जा रहे हैं। तो इनके ऑनर के लिए हमने बड़े खाने का आयोजन किया है। मैं कमांडेंट एडम के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि साहब 1983 में यानी कि 43 साल पहले, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पैदा भी नहीं हुए होंगे, फौज ज्वाइन किया था असम राइफल, और उसके बाद 2002 में साहब ने कमीशन लिया था। इतनी लंबी सर्विस के दौरान साहब ने विभिन्न पदों पर तथा अनेक स्थानों पे सर्व किया, जिसमें कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जो अपॉइंटमेंट साहब ने किए हैं। 3-4 बार तो कमांडेंट एडम का ही किया है, और साहब ने यूएन मिशन में भी काफ़ी लंबा समय तक रहे हैं। यूनेस्को में भी काम किया है, एंड यूएन मिशन हैती में भी साहब रहे हैं। हेडक्वार्टर 23 सेक्टर में साहब ने ऑलमोस्ट 17 साल तक के बहुत ही अच्छा काम, और जो आपको दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि जिस छत के नीचे आप अभी बैठे हो, ये छत भी साहब का ही देन है, इससे पहले ये था नहीं। तो ऐसे साहब ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो कि ट्रूप्स ऑफ द वेलफेयर में जो कि एक्चुअल होने चाहिए काम। तो साहब की मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप सबने साहब के काम देखे हैं। मैं कैंप की तरफ से, पूरे हेडक्वार्टर 23 सेक्टर की तरफ से साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों के ही 2 शब्द कहें। Respected all ladies and officers, सभी जेसीओस और फैमिली जवान, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने कम से कम कीमती समय निकाल के, बड़ा खाना तो आप लोगों ने काफ़ी खाया है, बहुत एंजॉय भी किया है। मेरे लिए मेरा जीवन का ये एक बड़ा गोल्डन वो मेमोरी रहेगा कि मैंने कहीं एक बड़ा खाना किया है, और ये हमेशा याद में रहेगा। जहाँ तक कि सर्विस की बात है, साहब ने बोली दी है, एक लंबा समय जवानी का, पूरा जिंदगी का खाली असम राइफल्स में ही हमने बिता दिया है। तो इसीलिए जो लगाव है फौज के लिए, असम राइफल्स के लिए, ये हमेशा मेरा दिल में रहेगा ही। बाकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आया, अपना कीमती समय निकाल के एंजॉय कीजिए। जय हिंद।
आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब आपने हमारा कैंप कमांडर साहब ने बता दिया है। उसके बाद हमारा एसएम साहब के बारे में एक दो बात बताऊंगा। हमारा एसएम साहब 27 असम राइफल से 1 अगस्त 2023 को यहाँ अपना कार्यभार संभाला था। 20 महीने के दौरान में अभी उनका सर्विस कंप्लीट हो गया, तो मतलब ठीक ठाक अपने घर को अपना बच्चों परिवार के साथ में बैठने के लिए घर जा रहा है। हम भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं घर में जाके सही सलामत इसी तरह मतलब ठीक ठाक सही सलामत रहे। आपस में फोन के द्वारा या कहीं से हमसे आपस में मिलाप करते रहेंगे। इसी में अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारे एसएम साहब से यहाँ आके एक दो बात बताएं। तो कमांडर साहब से मैं इजाजत लेता हूँ कि आज कमांडर साहब से इजाजत लेता हूँ कि ये आज का ये छोटा सा बड़ा खाना जय करने का अनुमति चाहता हूँ। 23 सेक्टर की जय हरि। दारू पीना है। जय साहब, आदरणीय कमांडर साहब, मैम साहब, इस मंच पर विराजमान अधिकारीगण, मैम साहब, मेरा सहयोगी सरदार साहिबान, मैम साहब, परिवारजनों, प्यारे बच्चे, असम राइफल्स का हुनर, एक्स सर्विसमैन, स्टाफ एवं 23 सेक्टर का मेरा बहादुर जवानों, मेरा विदाई समारोह में सेक्टर की परिवार की तरफ से मुझे जो इज्जत दिया है, इनके लिए मैं आभारी रहूंगा। ये मेरे लिए एक भावुक क्षण है, जो कि मैं 41 साल निष्ठा और लगन के साथ असम राइफल में सेवा देने के पश्चात सुपरनेशनल पेंशन जा रहा हूं। खुशी का बात यह है कि मैं आप लोगों का आशीर्वाद और माता रानी का कृपा से कुशल अपना घर जा रहा हूं, अपना परिवार के साथ समय बिताएंगे। साथ में मेरा नाती पुती इधर में पूरा आ रखा है, तो ये लोग भी मेरा टाइम पास का, ये लोग भी मेरा टाइम पास का जरिया है। मेरा सर्विस के दौरान असम राइफल से मिला अनुशासन और गौरव मेरी जीवन भर साथ रहेगा। मैंने अपनी सेवा के दौरान जो चुना दिया और प्यार अपना साथियों से पाया है, वो मेरी जीवन का सबसे अनमोल विरासत है। मेरे सीनियर और साथियों से हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मैं उस सैनिक जीवन का सलाम करता हूं जो हमेशा देश के लिए बलिदान और कर्तव्यों का प्रति निष्ठा ईमानदार सिखाता है। और मैं माता भवानी से निवेदन करता हूं कि मैं नमन करता हूं कि 23 सेक्टर का परिवार हमेशा कुशल रहे, स्वस्थ रहे। अभी मेरे साथ सभी 3 बार जय पुकारेंगे। बोल दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय, इस सेक्टर की जय। साहब अच्छा और बहादुर सरदार साहब और जुआन फैमिली, और ये हमारा एजेंट साहब हमारे साथ में सर्विस करा है। ये सर्विस में आगे सर्विस में असम राइफल बहुत ताल्लुक करके हमको छोड़ के जा रहा है। बहुत अफसोस का बात है, एक तरफ में खुशी का बात है। अपना बाल बच्चा फैमिली के साथ में हमको छोड़ के जाएगा। बहुत अच्छा से हमारा प्रार्थना है फैमिली बाल बच्चा के साथ अच्छा से रहे और खुशी से रहे। और हमने
ये एक सर्विसमैन आरएसएफ की तरफ से हमने गिफ्ट देना चाहूँगा। मैं करता हूँ कि हमारे साथ में थोड़ा गिफ्ट देने के लिए कष्ट करें। थैंक यू। मैं आदर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माननीय सेक्टर को कैंप की तरफ से छोटा सा प्रोग्राम करके कैंप की आवाज़ दान करें। ध्यान नहीं दे रहे। मेरी सभी से गुजारिश है, एक बार जरा थोड़ा ध्यान दें इधर। मैं इस मौके पे सही दिल से अपने कैंप कमांडेंट एडम कमांडेंट साहब और एसएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ कुछ चीज़ें शेयर भी करना चाहता हूँ जो आप लोग जो बैठे हैं इधर वो इसको समझ पाएंगे, क्योंकि मैं असम राइफल में अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पे आया था, डीआईजी है, और 24 मार्च पिछले साल आया था। और यहाँ आने के बाद सब लोगों की मौजूदगी में मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन या किसी नए हेडक्वार्टर में आया हूँ। दोनों जो हमारे साहब हैं उनका स्वभाव इतना सहज था कि मेरे को कभी किसी चीज़ में कोई मुश्किलात नहीं पेश आने दी लोगों ने। मेरा को महसूस ही नहीं हुआ कि काम करने में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दोनों साहब लोगों के जो आपके प्रति और हमारे ट्रूप्स और फैमिलीज के प्रति जो भावनाएं हैं वो तारीफ के काबिल है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई सुझाव मांगा हो, वो खुद से सुझाव दोनों की तरफ से आते रहे, और वो सारे सुझाव वो थे कि हम कैसे अपने सेक्टर में चीज़ों को और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, कैसे फैमिलीज के लिए या ओवर्स के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स हर जगह लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसको हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि बेहतरी लाई जा सके सभी के लिए। इसके लिए मैं खासकर दोनों को बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। साथ ही साथ मैं ऊपर वाले से जो है प्रार्थना करूंगा कि वो एक नए फेज में लाइफ के जा रहे हैं, और एक फौजी के लिए आसान नहीं होता। जैसे साहब ने बताया 40 साल प्लस तो उनकी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा, ऐसे ही एसएम साहब का भी, तो एक ये मेजर पड़ाव होता है फौजी की ज़िंदगी में, जो वर्दी छोड़ के वो सिविल लाइफ में जाते हैं। और ये एक मौका ये भी है कि अपनी फैमिलीज के साथ रहने का भी उनको टाइम मिलेगा, उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो अक्सर होता क्या है, हम फौजी तो अपनी सारी ज़िंदगी फौज में गुजार देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारे घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, फैमिली क्या कर रही है। तो फैमिली और बच्चों का जो ध्यान देने का मौका मिलेगा उनको। मैं साहब से पूछ रहा था अभी क्या करेंगे, तो एडम कमांडेंट साहब बोलते हैं बस अभी घर पे रहेंगे। तो बनता भी है, इतनी जिंदगी में अपनी सर्विस की है, अपने परिवार का देखभाल करें। अब मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, अगर हम किसी काम आ सके, मैं आज यहाँ हूँ, एक साल और रहूँगा, आई एम श्योर जो मेरे बाद आएंगे वो भी जो इस चीज़ का आगे बढ़ाएंगे। बट एट अ पर्सनल लेवल कहीं कभी मौका मिले तो प्लीज सपोर्ट मेरे से, आप अपनी कोई भी पॉइंट है वो कन्वे करना, कोशिश मेरी रहेगी। अगर मेरी जितनी भी क्षमता है मैं उसमें जो मुझसे बन पड़ेगा मैं पता करूँगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अच्छा ये मौका है, देखो वो होता है जो इंसान सही होता है उसको ऊपर वाला साथ भी देता है। सुबह मौसम कितना खराब था, मुझे लगा आज ये बड़े खाने में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखो
खुल गया मौसम और सुचारू रूप से सभी बड़ाखाना भी अच्छे से हो रहा है। थैंक यू। ओके। Assam Rifles कभी जिंदगी यो हो हाम्रो तस्यानो कबीले Men phải không vậy music cũng là giải tập vậy này. जाँदैछन् आज हाम्रो त दाजु त नेपालीसम्म हुँदैछ लैलै यो खुसी आज त यो खुसी आज त ओके जिन्दगी मैले भुलेको थिएँ मेरो दिलले कदा भुल्दैन मरे सफाली जिन्दगी मेरो कसैले छोड्दैन हेरिराखन जिन्दगीमा सबैलाई कोही सोचिराखन आज त यहाँ भोलि कहाँ भुलेर नजानु जिन्दगी मेरो आशा छ अहिले भुलेर न Ờ thế cho vào đây chân tỏ to đây đi. पल पल तुमके पास À mẹ sport cho đó có mẹ sang à. Puri arsa papar à. Thì cái group photo này thà na hun tối té cảnh mong à, here là đi chú, câu tỏ to đây.
Hiền ăn đủ to máy to hiền của mình đến po chậu to do này đi thật to thấy là lên lần này bốc hay hay thả cái nó cần tồn tại चल अभी हमारा बराखाना खत्म हो गया है हम जा रहे हैं अभी मौसम भी ठीक हुआ है ना किस्मत ठीक है मौसम भी ठीक ही हुआ hiền cái polo trên cái gì mà ăn cල් to thì hiền cái gì phải hiền không ạนี่สอนลูกเลยเฮ้แต่แค่กันมาป้องแค่นี้กับลูกเต้าแค่บุ้ยเว้ยมันพูดชาวฟังอ๋อที่นี่เกตาเกตเช่นกันหัวชาวนั่นตัวมอเตอร์ชุดตอกไม่มีเป็นเลยเฮ้ยเฮียนอ๋อชุดเราเลย चलो चलो बैठो चलो बैठो बैठो लुम दो ले बैठ 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 चलो चलो करता है तुम पहले cái đi po hay thì hiện đến nó chầu vẻ hà lại pu teo mà còn vẻ hà lắm ê có phải người teo có đúng sao á ăn chán chắc cốc vậy sole các chúng ta nếu mà thích cấp về sò trên dưới cái ta get là chầu đòn